बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस आयशा हूँ। आज आपको मैं प्रोस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊँगी। पिछले चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, आपको यकीनन इसको समझने में आसानी होगी। इसका नाम है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स और इसको J.C. स्क्वायर ने लिखा है। इस चैप्टर में बड़े हल्के फुल्के अंदाज में रोज़मर्रा के एक मामूली से वाक़े को राइटर ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। उन्होंने बताया है कि उनके फ़्लैट में बेकार किताबों का एक वसी ज़ख़ीरा इकट्ठा हो गया था और उसमें ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो पोइट्री की थी, शायरी की थी और वो घटिया किस्म की किताबें थीं जिनका दूसरा एडिशन कभी नहीं छपा था। इस बात से इस हकीकत की भी निशानदही होती है कि लोगों में ऐसी किताबों की कोई कदर नहीं थी। पोइट्री की जो बुक्स थी वो बेकार थी। उसके छोटे से फ्लैट में इन किताबों को संभालने की कोई ख़ास सहूलत मैसर नहीं थी और उसकी एक ही सूरत नज़र आती थी कि या तो उसके फ़्लैट में ये किताबें रहें या फिर वो ख़ुद रहे। चुनाचे मुसन्निफ़ ने सोचा कि इन किताबों को तबाह या तल्फ़ कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसने किताबें बोरी में बंद की और दरिया तक ले गया। इन किताबों को दरिया में फेंकने का हाल इस कदर दिलचस्प है कि ये जो चैप्टर है इस इंग्लिश मज़ाह निगारी की नुमाइंदा मिसाल बन गया है। नाउ वी सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन इन इंग्लिश। J.C. Squire is a modern English prose writer who discusses our common experiences. Here he rejects the idea that all books should be kept by us for all time. Better books, in his opinion, should replace that are not of much use to us. Once the writer came to know that over 2 million books were presented to the troops by the public. Most of them were old and useless. He points out that the people just got the opportunity of getting rid of such books. He very humorously points out that it is a common practice in most of the houses that they preserve anything that is in the printed form and looks like a book. He is of the view that all the books are not worthy of being preserved, so it's a public duty to destroy them. कि आम हालात में लोग जो लिखी हुई जो भी चीज़ है किताब की सूरत में, वो कहता है उसको महफूज रख लेते हैं, चाहे वो काम की है या नहीं। लेकिन उसका ये नज़रिया है कि इस तरह की किताबें जो कि काबिल नहीं हैं, रखने के काबिल नहीं हैं हमारी अलमारियों में, उनको प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। उनको ये हमारी पब्लिक ड्यूटी है कि उसको हम तल्फ़ कर दें। In a very humorous way, he narrates his own story of destroying his useless books. He lived in a flat that was not very big. Most of the space was occupied by books of inferior, minor poetry. They were all the first editions because the second edition of such useless books was not printed. It became very hard for him to get rid of them. He thought of a plan and acted accordingly. He put them in a sack and decided to throw them into the river. तो उसने अपना दिलचस्प वाक़या बयान कर रहा है कि किस तरह से उसने अपने घर में जो बेकार किताबें थी उसको अल्टीमेटली उनको तल्फ़ करने का जो उसने डिसीजन लिया था वो क्या था कि इनको दरिया में फेंक दिया जाए। The adventure of throwing these books into the river has been described in an entertaining style. The writer has created a special and mysterious atmosphere. The description of the outer world and the inner fears of the writer produces an amusing contrast. It's a fine example of creating pure humor. It was nearly midnight as the writer stepped into the street, which was almost deserted. The atmosphere was cold and the sky was full of stars. He turned up his overcoat collar to save himself from the cold air. He was carrying a heavy sack of books on his shoulders. His appearance made him mysterious and he looked like a secret agent. On the way he saw a policeman. First he got frightened that he might be taken as a thief, but then he regained his confidence. He said to himself that no sensible man could be charged of stealing such worthless books. The policeman took no notice of him.
जिस तरह से इसमें इस पैराग्राफ में वो एक्सपीरियंस बता रहा है कि किस तरह से उसने किताबें, बेकार किताबें बोरी में बंद की, अब फिर रात के टाइम में वो उसको दरिया के हवाले करने के लिए जब चल पड़ा तो उसको रास्ते में टाइम टू टाइम खौफ भी आता रहा कि रात का टाइम है और अगर कोई उसको देख लेता है फ़ौरी तौर पर उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या है, या जब उसको दरिया में फेंक देता है तो एक स्प्लैश होगा, उससे भी जो है वो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा कि आया इस बोरी में किताबें थी या कोई और चीज़ थी। तो ऐसे में एक पुलिसमैन जब वहाँ से क्रॉस करता है तो वो खौफज़दा होकर रुक जाता है कि शायद उस पर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए या उसको अरेस्ट ना कर लिया जाए, लेकिन पुलिसमैन ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया था। अल्टीमेटली द राइटर रीच द ब्रिज, ही वॉज अबाउट टू अलाउ द सैक इन टू द रिवर that he saw someone coming that way. He sprang back from the wall and started walking. The man did not pay any attention to him and went his way. Before throwing the books, an idea flashed to his mind that the sound produced in water might cause any problem. He lost courage once more. एक दफ़ा फिर उसको खौफ आया कि ये जो पानी में जब ये डालेगा उस वक़्त अगर कोई आ जाता है तो फिर क्या होगा। यहाँ पर भी उसका हौसला जो है एक दफ़ा फिर वो अपना हिम्मत हार जाता है और खौफज़दा हो जाता है। He remained in the condition of anxiety for a long time. He thought of the consequence once again. This caused delay in the process. On this, he condemned himself. At last, he took heart and threw the sack into the river. It dropped down and produced a prominent sound, but no one came to him. After he had thrown the books into the river, he felt sorry for them. बुक्स को दरिया में फेंकने के बाद स्क्वायर जो है उनके लिए हमदर्दी दिल में उसके पैदा होती है, उसको किताबें याद आने लगती हैं और उसका दिल चाहता है कि यानी काश ये किताबें अच्छी होती और इनकी किस्मत ये ना होती कि इनको दरिया में नीचे कीचड़ में वो इस वक्त वो होंगी। तो उसके लिए वो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर इस तरह से जज्बात उभरते हैं कि वो सॉरी फ़ील करता है, लेकिन फ़ाइनली उसने उन बेकार किताबों से छुटकारा हासिल कर लिया। ये था जी राइटर ने ख़ुद को देखें इसमें निशाना बनाकर मज़ाहिया अंदाज में रीडर्स को हंसाता है और कहता है कि बेकार किताबें जो हैं वो तबाह कर देनी चाहिए और हमारे घरों में, हमारे घर की शेल्फ़ में या अलमारियों में नई किताबों के लिए ताकि जगह बने, वो किताबें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हों या जिनसे हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। बेकार किताबों को घरों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है, आप उसको देखें और उसके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये आपके सिनोनिम्स का पार्ट के लिए है। सबसे पहला है वर्ड ऑडेस्ट, इसका मतलब है अजीबोगरीब, वेरी स्ट्रेंज, पिकुलर, अनकॉमन। उसके बाद है इनडाइजेस्टेबल, बेमकसद चीज़, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, टफ, हार्ड और बोरिंग। रिलक्टेंट मीन हेजिटेंट, हिचकिचाहट, अनविलिंग। नेक्स्ट वर्थलेस, वर्थलेस मीन बेकार, फजूल, बेवक़्त, चीप, ऑर्डिनरी, यूजलेस। नेक्स्ट है एब्सर्ड, बेहुदा, वल्गर, इट मीन वल्गर, यूजलेस, रिडिकुलस, सिली, स्ट्रेंज। स्कैफोल्ड मीन प्लेटफॉर्म फॉर पनिशिंग क्रिमिनल्स। नेक्स्ट कंसाइन, अशिया की नकलो हमल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवर, ट्रांसफ़र। सस्पिशियस मीन डाउटफुल, डुबियस, एप्रीहेंसिव, मशकूक। स्वैग मीन चोरी शुदा अशिया, स्टोलन थिंग्स, प्लंडर, बूटी। डेलिब्रेटली मीन जानबूझकर, नॉलेज, knowingly और thoughtfully, intentionally। फर्टिव मीन पुरस्रार अंदाज में, सीक्रेट, डाउटफुल, स्टील्थली। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन मीन मतलब या मानी, हिडन मीनिंग, इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट। ल्यूमिनस मीन रोशन, ब्राइट, ग्लोइंग। नेक्स्ट
अनकंसर्न मीन लाताल्लुकी, इंडिफरेंस। नेक्स्ट स्प्लैश मीन पानी में गिरने की आवाज़, साउंड प्रोड्यूस बाय समथिंग थ्रोन इनटू वाटर। प्लंज मीन छलांग, ड्राइव, थ्रस्ट और ड्रॉप। ये कुछ वर्ड्स थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग हैं, आप इसको याद करेंगे। इसके अलावा भी चैप्टर पढ़ते हुए आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है और उसका मीनिंग आपको नहीं आता तो आप उसको डिक्शनरी से कंसल्ट करें, उसका इंग्लिश मीनिंग जो है उसको अपनी बुक में पेंसिल के साथ लिख लें ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती जाए। उसके बाद हम बुक के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। अंग्रेज़ अवाम ने किस तरह की कुतुब सिपाहियों को पेश की। इसका आंसर है, मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट बाय द पीपल टू सोल्जर वर ऑर्डिनरी एंड यूजलेस। ठीक है, ज़्यादातर वो किताबें आम सी थी और बेकार थी जो सिपाहियों को प्रेजेंट की गई थी अंग्रेज़ अवाम की तरफ से। सम ऑफ देम वर वर्थ रीडिंग, सम पीपल सेंट मैगजीन, 20 years old guides and almanacs. Question number 2 है, was it interest in soldiers that prompted their action or was it the wish to get rid of useless books? क्या सिपाहियों में ये लोगों की दिलचस्पी थी जो उनकी इस काम का सबब बनी या वो बेकार किताबों से छुटकारा चाहते थे? लोगों ने क्यों ये किताबें दी? द पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन सोल्जर। ठीक है, इसका आंसर है कि लोगों की सिपाहियों में ये डोनेट करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। दे जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ ओल्ड यूजलेस बुक्स, दैट्स वाई दे सेंड द ऑड एंड एब्सर्ड बुक्स टू द सोल्जर्स। और हम भी ज़्यादातर इसी तरह से करते हैं कि जो बेकार चीज़ें हुई वो उठा के किसी की हेल्प कर दी। तो यहाँ पर ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये बेकार बुक्स जो हैं सोल्जर्स को उन्होंने जो प्रेजेंट की थी वो इनफैक्ट उनकी हेल्प नहीं थी, उनको कुछ जो है किसी तरह से उनको वो प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, कोई एड नहीं दी जा रही थी, बल्कि वो किताबें जो हैं घर से बेकार किताबों से छुटकारा हासिल लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। कि बुरी किताबों जो है उन कुतुब से क्यों उनको तबाह कर देना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, इट इज़ नॉट गुड टू कीप द बैड बुक्स। ये अच्छी बात नहीं है घर में बेकार फजूल किताबें होनी चाहिए। डिस्ट्रॉइंग बैड बुक्स विल मेक मोर रूम्स फॉर न्यू बुक्स। इट विल also save the ears from the trouble of sorting out the rubbish or sorting it. Therefore bad books should be destroyed. कि हमें जो बेकार किताबें हैं, फजूल किस्म की किताबें हैं, उन्हें हमें तबाह कर देना चाहिए ताकि घर में नई किताबें जो पढ़ने के काबिल हैं उनके लिए जगह बने और पुरानी किताबें जो है हमें फ़ौरी तौर पर तबाह कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ जो हमारे पास बेकार भी हों और अच्छी भी किताबें हों तो बाज़ औक़ात उनको सर्च करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि इसमें से हम कैसे तलाश करें। तो जब होंगी सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए तो हमारे लिए उनमें से सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। ये क्यों ये काम मुश्किल है किताबों को तबाह करना? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज जनरली वी डोंट हैव प्रॉपर प्लेस टू डू दिस। इट इज़ नॉट ईजी टू बर्न दैम। The only way to burn a book is to burn it leaf after leaf. Throwing them into river is also not easy. Next question number 5 है, why should the author not burn the books? मुसन्निफ़ किताबें जला क्यों नहीं सकता था? Why could the author not burn the books? Answer है इसका, the author lived in a flat. He did not have a spacious kitchen or a cooking range. The books do not burn until they are torn leaf after leaf. Therefore, he could not burn those books, hundred of books, in a gas cooker or electric heater. Question number 6 है, how did he decide to get rid of them? इनसे निजात हासिल करने के लिए उसने क्या फ़ैसला किया? इसका आंसर है, the author decided to throw the books into a river. He took a big bag, he stuffed the books into it, put it on his shoulder and threw them into the river and got rid of them.
तो उसने अल्टीमेट यही फ़ैसला किया कि इनको दरिया के हवाले कर देना चाहिए, पानी में यानी बहा देना चाहिए। इस तरह से उसने किताबें, खौफ वाली सिचुएशन भी सारी उसने बताई है, लेकिन अल्टीमेटली उसने किताबों से, उन बेकार किताबों से निजात हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर। ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। इसका आंसर है इट वाज मिडनाइट, द ऑथर वाज with the sack of books on his shoulder passed by a policeman. He feared that the policeman might take him for a thief. When he reached the river, he thought that he might be arrested as a baby killer. उसको कोई कातिल समझा जा सकता है कि इसमें कोई बच्चा इसने शायद बोरी में बंद किया हुआ है। Finally he overcame his fears and threw the books into the river. क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग दैम इनटू द रिवर। आखिरकार उसने किस तरह से जुर्रत की और किताबें दरिया बुर्द कर दी। आंसर इसका, ईच टाइम ही ट्राई टू टेक हार्ट some sudden fear seized him. At last he felt ashamed of his baseless fears. He thought that if he failed that day, he would never be able to get rid of those books. अगर आज नहीं फेंक सकता तो फिर कभी भी नहीं इसको बेकार, इनको ज़ाया कर सकता। So thinking this, he mustered up his courage and threw the sack into the river. और फिर उसने हिम्मत की, हौसला किया और किताबें जो हैं वो दरिया के हवाले कर दी, दरिया में फेंक दी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, डिड ही कम टू हैव फीलिंग्स फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ दैम। फिर उन किताबों के लिए कौन सी उसके दिल में कोई हमदर्दी हुई थी जब उसने उनको दरिया में फेंक दिया। द राइटर सर्टेनली फेल्ट सॉरी फॉर द बुक्स। ही थॉट दैट द इनोसेंट बुक्स वुड बी लेइंग इन द कोल्ड डार्क बॉटम ऑफ द रिवर। With the passage of time, they would be covered with mud and spoiled by water. ये वो सोचता है कि मासूम किताबें किस तरह से दरिया में नीचे उसकी तह में पहुंच जाएंगी और फिर इसके ऊपर कीचड़ में ये भरी हुई होंगी, तो वो इन किताबों के लिए हमदर्दी का एहसास रखता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स एंड होता है इसका। आपने इसको इसी तरह से बाकी चैप्टर्स की तरह भी साथ साथ इसको याद करते जाना है। और जो मैंने आपको और दूसरी असाइनमेंट दी हुई है और वो है ईडियम्स की, डेली 5 ईडियम्स। तो फिर इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारे ईडियम्स जो हैं साथ साथ, जैसे ही आपके पास ये 50 हो जाए उसकी रिवीजन कर लें, फिर नेक्स्ट 50 हो जाएंगे, तो फिर इस तरह से आपके साथ साथ रिवीजन भी होती जाएगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ फिर इंशाल्लाह आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त खुदा हाफ़िज़।